Hello, guys, this is PB, and you're watching Tintin Quarantino, which is the name of my new podcast that I'm starting now. And yeah, this is something that I wanted to start for a very long time. But just like you've been trying to get out of your toxic relationship, I've been trying to break up with the procrastination. क्योंकि भैंचोद मैंने कसम से इतने बहाने मारे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है और राइटर्स ब्लॉक है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. Because I had the equipment, I was not just using it. Just like you have your brains and you wouldn't use it, same case मेरे साथ भी है. But finally मैंने शुरू कर दिया है ये podcast, I guess so कि कर ही दिया है. And let me tell you quickly the format of this podcast, that I will be there and the setup will be there, and I will be talking on social issues, topical-ish things, and political, apolitical stuff, every sorts of stuff I am going to talk about. And I will be speaking in English, and I understand that as we are in India, I don't expect everyone to understand English. Even I don't understand English sometimes of this guy. As the great religious teacher Swami Vivekananda once said. Well, so it's okay, it's cool, it's completely fine to not understand English, and it's as fine as Ross was when he saw Rachel making out with Joey. Absolutely. I'm fine. Totally fine. So मैं कुछ चीज़ों को हिंदी में उनका अनुवाद कर दिया करूँगा, and this is how this is going to roll, and I'm going to bam this table and make my points like Arnab Goswami, but also at the same time I'm going to make sense as well, unlike Arnab Goswami, and I'm going to be giving my opinion on each and every shit out there, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है कि मैं हर टट्टी पर अपना विचार देने वाला हूँ. So let's get started. परिचय घुमाया जाए. I mean, let's roll the intro. थोड़ा ज़्यादा हो गया ना. Well, इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ उस वजह की जिस वजह से ये पॉडकास्ट में शुरू कर पाया हूँ. मैं अपनी तन्हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस लॉकडाउन के बारे में. एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू टिप्स कि कैसे आप कोरोना वायरस से बच सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट्स की टेस्टिंग नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, माइग्रेंट लेबर, ब्ला 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 ब्ला. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर अ क्वेश्चन which is in the mind of each and every person out there कि भैंचो की ख़त्म कब होगा, ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, when we will be able to get back to our normal life, and when will this coronavirus die. Well, there are 3 types जिनकी वजह से कोरोना वायरस जा सकता है. बट उससे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है दैट इट्स रियली ऑब्वियस दैट दिस कोरोना वायरस इज गोइंग टू स्टिक अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. प्लीज़ क्लियर दैट अप. एंड इवन व्हेन वी गेट रिड ऑफ दिस वायरस, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप बॉदरिंग अस. Sounds like your ex, right? So there are typically 3 ways जो साइंटिस्ट को लगता है कि जिससे हम पैंडेमिक्स को हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं. जिनमें से एक वर्ल्ड में किसी ने नहीं माना है. यूके सोच रहा था मानने का, लेकिन फिर किसी ने भी नहीं माना क्योंकि वो एक बहुत ही फुद्दू सा आइडिया है. विच इज़ दैट कि लेट द वायरस अनलीश एंड लेट द पीपल गो रोम अराउंड एंड गेट एक्सपोज टू दिस वायरस. Whosoever is strong enough, whosoever has a strong metabolism and an immune system will get this virus, and he will be able to automatically cure himself by creating antibodies, and hence that person will be immune. And the second case scenario will be the person won't be strong enough and will eventually see the coffin dance himself from inside the coffin. Well, this is such a stupid idea कि मुझे लगता है कि इसको साइंटिस्ट, सचमुच में साइंटिस्ट बैठे थे इस आइडिया को डिवाइस कर रहे हैं. सीरियसली ये आइडिया किसी ने किसी को पिच किया होगा. ये आइडिया परसों मेरे अंकल दे रहे थे, पड़ोस में रहने वाले. वेल, ये आइडिया साइंटिस्ट का तरीका है कहने का कि जो होगा देखा जाएगा यार. मतलब सीरियसली साइंटिस्ट भी अब इस आइडिया को सुन करके दोबारा सोच रहे होंगे. कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम. हमें तो हाथ मिलाए, गले मिले एक दूसरे से. क्या बढ़िया आइडिया आया भाई. Now we are left with the 2 options. One is the red pill, another one is the blue pill, just like the Matrix movie.
इनमें से एक तरीके को हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और दूसरे तरीके पर हम फिलहाल निर्भर कर रहे हैं। पहला तरीका ऑब्वियसली लॉकडाउन। वेल, लॉकडाउन से फिलहाल तो कोई एम नहीं कर रहा है कोरोना वायरस को सॉल्व करने का, लेकिन इट्स अ रियली गुड स्ट्रैटेजी। So it's not something that we can easily rely on, not because we are not testing, not because that we are not capable of doing the proper quarantine, because it's impossible to actually put 8 billion plus people around the globe in their homes। मतलब इतने तो घर भी नहीं है दुनिया में जितने लोगों को हम अकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं। सो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि इतने सारे लोगों को हम अकोमोडेट कर सके, आइसोलेट कर सके, उनको बैठ करके खिला सके। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पिल विच इज़ द रेड पिल, जो कि है एक वैक्सीन या फिर ड्रग। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नाभि पर और अपनी नाक के ऊपर सरसों का तेल रगड़ना इज़ नॉट अ वैक्सीन, और गौमूत्र इज़ नॉट अ क्योर ऑफ कोरोना वायरस। सो प्लीज़ बाबा रामदेव एंड हिंदू महासभा, स्टे अवे फ्रॉम पीपल एज वेल एज द न्यूज़। Thank you so much. Well, the world record for creating a vaccine as soon as possible is 4 years. Minimum 4 years दुनिया में एक वैक्सीन तैयार हो पाई है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एंथनी फाउची, जो कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट हैं। एंड वही अंकल पहचाना नहीं क्या, वो जो पतले से एजिड से अंकल गोरे से खड़े रहते हैं डोलान भैया के पीछे, जब भी वो कोई बकचोदी करता है मुँह छुपा करके हंसने की कोशिश करते हैं, वही अंकल। हाँ, Because you know what I'd like to do? I'd like him to go back to the State Department, or as they call it, the Deep State Department, if you don't mind. I'd like to have him go back and do his job. So does anybody have any question? Please. हाँ, यही वाले अंकल। इनके अकॉर्डिंग 4 साल इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ क्रिएटिंग अ वैक्सीन, एंड वी हैव पुट अ टारगेट ऑफ 18 months. We are planning कि by end of 2021 or by 2022 we will be seeing a vaccine, which is really practically impossible according to a lot of experts. Let's try to find out कि कैसे एक वैक्सीन क्रिएट हो पाती है। एक वैक्सीन को बनाने में बहुत सारे स्टेजेस लगते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको एकेडमिक रिसर्च करनी पड़ती है, देन यू हैव टू डेवलप अ पर्टिकुलर ड्रग, देन यू हैव टू डू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड टेस्टिंग एंड डिफरेंट फेसेस, and then even after that when you are done with making a drug that is working, we are just halfway through. इसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो ड्रग शेयर करना पड़ता है, वो वैक्सीन शेयर करनी पड़ती है, ताकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट कर सके और अप्रूवल दे सके whether this drug is fine for mass consumption or not, whether it has any side effects or not. ये एडमिनिस्ट्रेशन चेक करता है, उसके बाद ही हामी मिलती है किसी भी वैक्सीन के लिए। एंड आफ्टर दिस अप्रूवल देयर विल बी मैन्युफैक्चरिंग। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ओवर हेयर। मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑल्सो वेरी टफ, बिकॉज जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मशीनरी और मैन पावर है, वो इनफ नहीं है, बिकॉज इस वैक्सीन की डिमांड दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होने वाली है। प्रोबेबली ईच एंड एवरी ह्यूमन अलाइव वुड बी वांटिंग इट, एंड देयर इज़ ऑल्सो नीड टू प्रिजर्व दिस वैक्सीनेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। सो इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। फैक्ट्रीज़ जो अभी अवेलेबल है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो बहुत जल्दी बना पाएंगी, सो इट्स ऑल्सो गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड आफ्टर मास प्रोडक्शन इज़ डन, देन देयर विल बी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। एंड ये भी चीज़ होती है वैक्सीन्स के केसेस में, उनमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों में। अमेरिका के लोगों के मेटाबॉलिज्म एशिया के लोगों के और अफ्रीका के लोगों के मेटाबॉलिज्म से काफ़ी डिफरेंट होता है। शायद वहाँ पर काम कर जाए, शायद यहाँ के लोगों में कुछ साइड इफेक्ट्स शो करे। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लोकल लेवल पे इसका रीअप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसके बाद जाकर के ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आउट होगी। एंड वी ऑलरेडी नो कि पोलियो ड्रॉप्स लोगों तक पहुंचाने में कितने ज़्यादा साल लग गए थे, जबकि वो हमारे पास थी वैक्सीन अवेलेबल, फिर भी लोगों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई थी। एंड द फेक न्यूज़ अराउंड इट अबाउट इम्पोर्टेंसी एंड ऑल दैट स्टफ नेवर एंड्स इन इंडिया, एटलीस्ट इन टुडेज वर्ल्ड। तो देखो, मैंने इतना सारा पढ़ा, इतना सारा लंबा प्रोसीजर है कि कैसे वैक्सीन सारा का सारा बनता है, इतनी सारी बायोलॉजिकल साइंस मैंने लास्ट टाइम 10th क्लास में पढ़ी थी, गांड फट गई थी। वेल, तो ये सब भी जो चीज़ है ये तब पॉसिबल है जब वी आर कंप्लीटली लकी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स लेस देन 10% ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीनेशंस गेट
approval from the administration, less than 10%. So it's really difficult for someone to create a vaccine and at the same time get approval as soon as possible and everything going as fine as possible. बिकॉज इसके अंदर इतने सारे स्टेजेस आते हैं, एकेडमिक रिसर्च का हमारे पास टाइम नहीं है, उसी में 3-4 साल लग जाते हैं कई सारे ड्रग्स को लेकर के. तो एंड इसके अलावा अनदर थिंग इज़ कि हमको फैक्ट्रीज़ जो है वो पहले से ही डेवलप करके रखनी पड़ेंगी. इतने मास लेवल पे फैक्ट्रीज़ हमको वर्ल्ड वाइड डेवलप करने की ज़रूरत है, बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे ही ड्रग तैयार हो जाए, अप्रूवल मिल जाए, उसका मास प्रोडक्शन फटाफट शुरू हो जाए डिमांड्स को मीट करने के लिए. बिकॉज अभी जितनी फैक्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उस टाइम पर बनाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत साल लग जाएंगे फैक्ट्रीज़ डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी तैयार करने में. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है विच इज़ गवर्नमेंट फंडिंग. इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज. तो इसलिए जो भी कंपनीज, जो भी लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को ऑलरेडी फंडिंग प्रोवाइड कर देनी चाहिए. दिस इज़ द नीड ऑफ दिस आवर. एंड इफ एनीथिंग अमंग ऑल दीज स्टेप्स lag even a little, we won't be able to see the pace of this vaccination for another 5 to 6 years, because generally the time taken by a normal vaccine to be created and distributed to the world is around 10 to 15 years, and we are over here targeting 18 months, which is way too quick, keeping in mind that this is a very highly contagious virus, coronavirus. So this is it, and this is what it is. Government has to start its homework, but it seems like the governments around the world are backbenchers and they don't do homeworks at their given time, and this is what it is. So I recommend you all to plan your future accordingly. A couple of years are going to be just like this, and do not expect that you will be able to just run and hug people and be back in crowds and in theaters and all that stuff so easily, because this is not going to happen anytime sooner. And yeah, that is it. If you are planning a career, if you are in 10th standard, 12th standard, then I will suggest that you plan a career that involves yourself, that involves you in essential commodities field, whether at the back end or at the front end, or you can study साइकोलॉजी, बिकॉज बहुत सारे लोगों का भेजा ख़राब हो चुका है इस क्वारंटाइन में रह करके. वैसे कैबिन फीवर इंडिया में तो अभी इमर्ज होना शुरू नहीं हुआ, बट इट्स नॉट दैट फार अवे. जल्दी में भी ये भी शुरू हो जाएगा. लोगों के बीच में झगड़े, घर के अंदर रहना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये बहुत सारे लोगों के अंदर होता है. और इस चीज़ को लेकर के भी अगर आप कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. मैं अब कैरियर काउंसलिंग मोड में आ गया हूँ, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. सो लेट्स जस्ट रैप अप दिस वीडियो एंड कंक्लूड विद द फैक्ट कि यार यही है जो है. अब ये एक बुरी खबर है, सो ऑब्वियस सी बात है कि मैं वीडियो को लाइक करने को बोलूँगा तो आप कहोगे कि चलना चाहिए. सो लाइक करना हो तो कर दो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना लोगों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताओ ये कैसी एक्चुअल में मुझे सिर्फ और सिर्फ ना कमेंट्स भरने हैं. ये एल्गोरिदम होता है यूट्यूब का कि ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स आते हैं ना तो वीडियो ट्रेंडिंग सी हो जाती है. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. सो अगर मन हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और VIP बन के तारीफ या बुराई करने के लिए मेरे इनबॉक्स में मत पहुंच जाना. प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वाइट ऑफ ट्राई कलर एंड द फिल्मी मुंडा. So this was it. Please subscribe to this YouTube channel, and I'll see you in the next podcast. I hope you like this one, and तब तक TikTok बनाओ.